Hello, my dear students. Today we will start learning a new programming language that is Python. आज हम Python की ABC से start कर रहे हैं. Okay, from the very starting. First of all, let's know what is Python. अब Python एक वर्ड है, हमने आज तक Python यही समझा है कि it is also called Python. अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? That it is very flexible. It can move with आई थिंक द मोस्ट फ्लेक्सिबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, है ना. तो इसकी ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला फीचर ही लेके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा. वाई that this name taken due to its similarity of flexibility because this programming language is also very flexible. फ्लेक्सिबल मीन्स जो कहीं भी फिट हो जाए, किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी ऐप के साथ. द प्रोग्रामिंग डन इन पाइथन कैन बी एट अ compatible level. Okay, it is invented by Guido van Rossum in 1991 and it is invented at National Research Institute for Mathematics at Netherlands. Okay, presently this is owned by PSF. Full form of PSF is Python Software Foundation. Okay, this basic knowledge we should know about Python. Now let's know the features of Python. What are the specialties of Python? Why we should use Python? Okay, number one, it is the easiest language till now. It is very easy to learn it. Okay, it's high level language. High level language कौन सी होती है? In which few English words are used, which are more easier to learn, जो 0-1 की language में नहीं होती. Fine. So that is high level language and Python is a high level language. After that, next feature is it is interactive. Interactive means कोई भी command डालो, instantly the reply will be given to you. Interact means जिससे हम आपस में communicate कर पाए. We can easily communicate through word. Okay, that is interactive. Interpreted. Interpreted means interpreter क्या होता है? मीन्स कन्वर्जन टू द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. हम कोई भी लैंग्वेज लेके कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता ना. इट अंडरस्टैंड्स ओनली द 0-1 लैंग्वेज. तो इंटरप्रेटेड मीन्स वट एवर वी राइट इन पाइथन दैट इज इमीजिएटली कन्वर्टेड टू कंप्यूटर लैंग्वेज एंड इमीजिएटली द रिप्लाई इज गिवन टू अस इन आवर लैंग्वेज. That is called interpreted. Means line to line the conversion from machine language to our language and our language to machine language is done. That is interpreted. Okay, then expressive means through Python we can express anything, any type of program we can create. It's free and it's open source. Open source means जो publicly available हो, no licensing required, source code is available to the user, कोई पेमेंट नहीं करनी. all that features are here. It's portable. Suppose मेरे पास Windows 7 है and a program I have created on this window and in pen drive I have given to you. Okay, and you are not having Windows 7, आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है, तो that program will run in your window also because the Python is portable. It is adjustable to every environment. हर environment में चलती है ये वाली. ओके, देन इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. मीन्स यहाँ पर हम वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे, वो हम आगे सीखेंगे हाउ इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. देन इट्स एक्सटेंसिबल मीन्स इट कैन बी एक्सटेंडेड. हम सीख के इसमें छोटा प्रोग्राम देन बड़ा मीन्स एक्सटेंड, वी कैन एक्सटेंडेड अप टू नो लेवल. ओके, कितना भी बड़ा प्रोग्राम वी कैन प्लान इन पाइथन. इट्स embeddable. Embeddable means which can be fitted in another software. Okay, embeddable means which can be fitted to some other. Suppose मैं कोई और programming language सीख रही हूँ and in that some features of Python I want to embed, तो that can be done. Okay, ये किसी के साथ भी friendship कर सकती है. सेंस समझ रहे हैं? Friendship means it can be embedded with any of other programming language also. Then लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. अब लाइब्रेरी क्या होती है? सो मैनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस की. इन द सेम वे पाइथन ऑल्सो हैज़ लाइब्रेरी जिसमें अलग अलग फंक्शंस होंगे, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स बनाने में हेल्प करेंगे जो हमारी. ओके, तो इट हैज़ अ लार्ज लाइब्रेरी.
Then GUI programming. GUI means graphic user interface. Full form आपको पता होनी चाहिए. Got it? In GUI programming, what is there? Means we have menus, we have title bar, हमारे सामने विंडो है, हम माउस से ऑपरेट कर सकते हैं. All that is called GUI programming. Graphics can be inserted in Python. जब आप ज़्यादा प्रोग्रामिंग लेवल पे पहुंच जाएंगे, जब आप बहुत सीख लेंगे, देन यू कम टू नो दैट हाउ ग्राफिक्स कैन बी यूज्ड हियर. Dynamically typed. Now what it means? Dynamically typed means when you start programming, you will see कि कीवर्ड्स का कलर अलग है, इनपुट का कलर अलग है, आउटपुट का कलर अलग है. मीन्स डायनामिकली टाइप्ड. कलर को देख के ही वी गॉट टू नो दैट इट्स द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. Okay, means specifically division of colors for particular things in Python is there. After that last is simple English. Means in Python कोई ज़रूरी नहीं है आपको हाई फाई इंग्लिश आती है, only then you can learn it. Very simple language is used here. तो इन फीचर्स से we got to know that it's really very interesting language. Okay, now advantage of Python. First, most of the things already we have discussed. Still लेट्स डू इट अगेन. एडवांटेज हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. अभी मैंने बताया ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, एनी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इट कैन वर्क. इट्स रीडेबिलिटी, जो कलर डिफ्रेंशिएशन मैंने बताई फॉर कीवर्ड्स, फॉर इनपुट, फॉर आउटपुट, फॉर एरर, एवरीथिंग इट हैज़ अ डिफरेंट कलर. तो इट द रीडिंग द प्रोग्राम इज बिकमिंग मोर इजी in Python. After that it's object oriented, already we have discussed. Higher productivity means execution of program and creating more complicated programs is very easy in Python. तो it means हम यहाँ से और बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इस Python का. Then less learning time means in no time. अगर आप में ज़ील है ना सीखने की, तो in very less time we can learn Python. Then GUI programming, then library availability, syntax highlighting means again color description जो हम डिस्कस कर चुके हैं. all those are the advantage of Python. Now how to install Python? First of all, in the browser you have to open this link. After that you have to install. Let me show you the practical description that how to install. Now let's open the web browser. I have opened Google Chrome, and in the Google Chrome you will type python.org. Okay, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, मैं दोबारा ओपन करती हूँ. अब python.org जैसे ही आप टाइप करेंगे, this website will open. In this website you will go to downloads. Got it? When you will go to downloads, look here it is opened. मैं downloads पे गई, that window opens. Okay, क्या किया? We have opened python.org and after that we have clicked on downloads. This will open. When you click on this window will open. Here you will move to bottom. जैसे आप नीचे जाएंगे, here you will see Windows executable installer. When you click on this will start downloading. Here you can see I have started it downloading. When it will be downloaded, then you click on it like, and डाउनलोड करने के बाद आपको आपकी फ़ाइल डाउनलोड्स में मिल जाएगी. ओके, डबल क्लिक, and when you double click on that installer, it will show you this window. Okay, here it's written install now. You will click on it and it will start installing in your system. 2-3 times it will ask for next. Okay, and in the last you have to click on finish. Okay, बेटा ये प्रोसेस करते ही the Python will be installed in your system. Now first thing you have to do, सबसे पहले Python अपने सिस्टम में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे. Okay, and if any problem you can consult me. After that, interfacing with Python idle. अब एक नई वर्ड आया है idle. है क्या Python? It's an interactive window.
मीन्स वी कैन इंटरेक्ट, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं पाइथन से। हम जो चाहे, जो भी कमांड दी है उसका आंसर इमीडिएटली मिलता है। ओके, इट मीन्स इंटरेक्शन इज देयर। कोड कैन बी टेस्टेड लाइन बाय लाइन, जो मैं बार बार कह रही हूँ, एक कमांड डाली, एंटर किया, उसका आंसर, नेक्स्ट कमांड डाली। Now for writing running Python program interactively, we can either use command line window or idle. अब ये दोनों चीज़ क्या होती हैं, I'll show you. Idle is simple integrated development learning environment. Full form of idle can be asked. The full form is integrated development learning environment. Meaning क्या होता है, integrated means जहाँ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं आपको, for developing any learning environment. Okay, idle allows the user to edit, run, debug your Python program on single interface. Means idle एक ऐसी जगह है where you can type your program, you can edit your program, you can run your program and you can see your output of the program. सब चीज़ एक जगह। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट idle. अब होता क्या है ये idle, बार बार मैं idle बोल रही हूँ। चलिए, अब सपोज वी हैव इंस्टॉल्ड पाइथन। अब आप ओपन कैसे करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, देन यू विल सर्च पाइथन अपने उसमें ही, ठीक है। अदरवाइज यू कैन टाइप हेयर फॉर सर्चिंग, बट आई एम नॉट सर्चिंग राइट नाउ, आई वॉन्ट टू शो यू। लुक हेयर इन माई सिस्टम देयर आर 2 पाइथन, सपोज वी हैव इंस्टॉल्ड दिस वन, तो क्लिक ऑन दिस वन। In Python you will see these 3 to 4 options. Right now we are talking about idle. Okay, so click on this idle Python. This window will open, this one, you can see it. This is our Python window, this is Python shell. Okay, in this Python window first of all you will see a welcome message, the version information Python की by default हर बार जब भी आप खोलेंगे copyright license, version की information, welcome message, everything is here. मैं बड़े करके दिखा रही हूँ आपको। Okay, and these 3 less than symbols you will see. Okay, these 3 symbols collectively, if a cursor is visible there, it means it is saying I am ready for typing command. Means here you will type command, and these symbols where we can type the command, these are called prompt. क्या कहते हैं, prompt. Okay, clear? आगे अपनी, here all these things are clear. Next is when we open Python idle by clicking on its icon, open हमने कर लिया, it starts in shell. I have shown you that it has started in shell. Okay, this is shell, you can see here it's written. After that what it is saying, Python shell is an interactive window. You can see here I can type command, any command I can type. ओके, एंड आउटपुट विल बी डिस्प्लेड इन द सेम विंडो। यहीं टाइप करूँगी कमांड और यहीं पर मुझे आउटपुट मिलेगा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरएक्टिव विंडो। इट्स एन इंटरफेस बिटवीन पाइथन कमांड एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे कंप्यूटर सिस्टम में है, सपोज विंडोज़ है या और कोई और है, तो दिस शेल विंडो, दिस विंडो इज़ अ इंटरफेस। इंटरफेस मीन्स जिसको आप बिचौलिया कहते हैं, मिडल मैन, ठीक है। पाइथन की कमांड और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ये शेल हमारी बातचीत करवा रहा है। गॉट इट? पाइथन आइडल कंप्राइजेस पाइथन शेल एंड पाइथन एडिटर। 2 चीज़ें ध्यान से सुनेंगे। पाइथन शेल, दिस इज पाइथन शेल, मैंने आपको दिखा दिया। इसका दूसरा नाम इंटरएक्टिव मोड। ओके, अगर कोई कहता है ओपन पाइथन इंटरएक्टिव मोड, तो डरना नहीं है, this shell is also called interactive mode. Is it clear? अब एक चीज़ और बात हुई है, पाइथन एडिटर और दूसरा नाम है स्क्रिप्ट मोड। वो कहाँ से खुलता है? लुक हियर, गो टू फाइल, न्यू फाइल, एक और फाइल आ गई। दिस विंडो इज कॉल्ड पाइथन एडिटर और स्क्रिप्ट मोड। ओके, 2 names are there, 2 windows are right now I am showing you. First of all, when you open the Python, this shell window opens. Okay, by default shell opens. This shell is also called interactive mode.
Prompt can be seen in the shell window only. And from file menu, when we click on new file, then we can see Python editor window. This window is also called script mode. Clear? मैं अभी इसको क्लोज कर रही हूँ, आगे चलते हैं. Here command line interaction. Now I'll show you one by one how we can interact in the interactive mode. Again I am opening the Python. Okay, here in Python, first of all, print is a function which is used to display the specified content on screen. अब print command की बात हो रही है सबसे पहले. Let's start our very first command. Suppose सबसे पहले मैं ये command run कर रही हूँ. You can see it's in different color. Isn't it interesting? Okay, मैंने enter press किया. The same thing. You can see difference. Command is in green color and output is in blue color. Okay, this is how we can display any message. लेकिन एक proper official तरीका क्या है? With print command. Print. This is our keyword. Now this is again in different color. तो जो भी keywords होंगी, command के words होंगे, they will be in this color. Okay, print करने के लिए सबसे पहला process है print word आएगा, then your bracket starts. And in the brackets you can type any name, your name, my name, ABC, whatever you want. Means any message I want to type. Bracket start हुआ तो it will be closed. This is our first command. Look, this is the first command. और next enter करते ही next prompt आ जाता है. This is called prompt. Clear? This is how अगर question आ जाए write a command to display any message, तो command क्या है? Print and ensure P must be small. मैं आपको capital P से करके दिखाती हूँ क्या होगा. Look, error message is there. It means this Python differentiate between capital and small alphabets. जो अगर आपको कहा गया है small alphabet use करना है तो small ही use करना है. You can see after using capital letter it is showing error message. Okay, तो to display any message print command is used and within the brackets any string. जो भी हम quotes के अंदर देते हैं inverted commas को हम बोलते हैं quotes. Whatever we give in the quotes that is called string. क्या बोलते हैं? String. Okay, चलिए आगे चलते हैं. Print statement without any argument will simply jump to next line. Argument क्या होता है? Whatever you are giving in the brackets, in the braces, ठीक है? That is called argument. अब इस command में argument क्या है? DAV PPS. This is the argument. Okay? अब what it is saying, अगर blank में command दूँ, खाली कोई argument नहीं है इसके अंदर, braces के अंदर कुछ नहीं डाला, तो obviously खाली जब कुछ डाला ही नहीं तो nothing will be in output, तो it will jump to next line. This question can be asked. Okay, if argument is not there in print command, then what happens? It will jump to next line. Okay, Python is case sensitive. It differentiate between capital and small alphabets. This I have already shown you that small p will work but capital P will not work. Then to repeat command in idle, press Alt plus P to save time. Suppose I want to type this command again, तो पहले मैं print लिखूंगी, bracket लगाऊंगी, then braces, then DAV PPS commas, all that, और simply मैं अब keyboard से Alt P कर रही हूँ, तो previous, फिर Alt P, उससे previous, Alt P, उससे previous. You can see Alt P is continuously jumping to the previous command. Okay, and press enter. मीन्स अगर सेम कमांड मुझे दोबारा टाइप करनी है, नो नीड टू रीटाइप, ऑल्ट पी प्रेस करें, इट विल टेक यू टू द प्रीवियस कमांड्स. क्लियर? चलिए मूव टू नेक्स्ट. नेक्स्ट इज पैरामीटर ऑफ प्रिंट. अब प्रिंट कमांड पे ही हम और काम सीखेंगे अभी. वाइल डिस्प्लेइंग मल्टीपल वैल्यूज, अभी हमने प्रिंट में एक एक वैल्यू डिस्प्ले करनी सीखी, अब मल्टीपल वैल्यू सीखते हैं. ओके, मल्टीपल वैल्यूज. प्रिंट सपोज मैं 10 डिस्प्ले कर रही हूँ, एक ही वैल्यू है, तो
10 आ गया। अब व्हाट डिफरेंस यू कैन सी, DAVPPS को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में रखा और 10 को नहीं रखा। तो स्ट्रिंग मीन्स वट एवर द करेक्टर वैल्यूज, दिस इज न्यूमेरिक, जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं दे आर न्यूमेरिक वैल्यू, तो नो न्यूमेरिक वैल्यू विल बी रिटन इन कोट्स। ओके, विदाउट न्यूमेरिक जो भी वैल्यूज, without numeric whatever the values that will be written in quotes, but numeric value will not be written in quotes. Got it? अब बात हो रही है हमारी फॉर मल्टीपल वैल्यूज, मीन्स मल्टीपल मीन्स राइट नाउ एक ही वैल्यू दी है मैंने, अगर एक से ज़्यादा देनी है तो व्हाट, लेट्स सी, प्रिंट विद इन द ब्रेसेस 10, 20, 30 और भी जितना विद कॉमा सेपरेशन जितनी मर्जी। क्या दिख रहा है हमें, 10 फिर स्पेस है, 20 स्पेस है, 30 मीन्स जितनी भी वैल्यूज डालेंगे, लुक हेयर व्हाट आई हैव रिटन हेयर, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा, हमने तो कॉमा से सेपरेट किया इन्हें, किया ना, दे आर सेपरेटेड बाय स्पेस इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मीन्स जब कमांड को हमने रन किया, दिस इज एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कमांड, इन एग्जीक्यूशन बाय डिफॉल्ट द सेपरेशन इज डन विद स्पेस। एक और क्वेश्चन हमें आ गया कि बाय डिफॉल्ट सेपरेशन इज डन विद व्हाट, तो बाय डिफॉल्ट विद स्पेस द सेपरेशन इज डन। ओके, सपोज मुझे यहाँ स्पेस की जगह कॉमा चाहिए, लेट्स सी। अब मैं प्रिंट आपको एक बार स्ट्रिंग में भी दिखा देती हूँ। सपोज ए लिखा मैंने, बी लिखा, सी, ओके, स्ट्रिंग है इसलिए कोट्स में आएंगे। नाउ यू कैन सी स्पेस इज देयर। ओके, अब वापस अपनी पिछली कमांड पे ऑल्ट पी यूज़ कर रही हूँ मैं आगे। अब आपको एक नई चीज़ सिखा रही हूँ, विद कॉमा सेपरेटर, फुल फॉर्म इज सेपरेटर, मीन्स बीच में क्या यूज़ करना चाहते हैं आप। ओके, हेयर आई शो यू इन सेपरेटर इन द कोड्स वट एवर, सपोज मैंने दिया डैश, ओके, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, लुक क्या आ रहा है, इंस्टेड ऑफ स्पेस द वट एवर वी विल गिव इन कोट्स, कोट्स के बीच में जो भी आप देंगे दैट विल कम एज सेपरेटर बिटवीन दीज मल्टीपल वैल्यूज। ओके, मैं ऑल्ट पी यूज़ कर रही हूँ, वापस वही कमांड, मैं सेपरेटर की जगह सिंबल चेंज कर देती हूँ, मैं डबल स्टार लगा दूँ, ट्रिपल स्टार लगा दिया, एंटर। नाउ यू कैन सी, दिख रहा है। चलो एक और ट्राई करते हैं, कोई और सिंबल क्या दें, चलो स्लैश देते हैं, दिस वन, लुक आया। अब आप कहेंगे यहाँ मैम ने 4 लगाए बट हेयर 2 स्लैशेस वर देयर, दिस स्लैश, ये स्लैश और भी जगह डिवीजन में यूज होता है, दैट्स वाई स्टार्टिंग और एंडिंग विल नॉट बी काउंटेड। ओके, क्लियर है, सेपरेटर आई थिंक इज क्लियर। अब एक और ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, एट्रीब्यूट है यहाँ पर एंड, स्ट्रिंग अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट अ न्यू लाइन आती है, मीन्स जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करते हैं एंड में कुछ नहीं आ रहा है तो एक नई लाइन में पहुँच जाते हैं हम, है ना, दिस इज बाय डिफॉल्ट। जैसे सेपरेटर का बाय डिफॉल्ट क्या था, स्पेस बार, स्पेस आ रहा था बीच में, बट ऐसे ही एंड में कुछ नहीं आता, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, बट आई वॉन्ट कि एंड में कुछ सिंबल आए। ओके, तो क्या करें, दोबारा लिखते हैं हम 10, 20, ज़रूरी नहीं है न्यूमेरिक वैल्यूज़ में ही करें, आप स्ट्रिंग में भी ट्राई करना ये चीज़। ओके, सेपरेटर इज इक्वल टू, मैं सेपरेटर किया, चलो डॉलर सिंबल कर देते हैं। ओके, अब मैं चाहती हूँ इन द एंड एक ऑपरेटर लगाया मैंने, एंड आई वॉन्ट, जो भी आप एंड के कोट्स के बीच में देंगे दैट विल कम इन द एंड ओनली। ओके, एंटर किया, क्या दिख रहा है, सेपरेटर में दिस एंड सिंबल आई हैव गिवन, एंड आ रहा है सबके बीच में। एक एंड में मैंने, एंड मीन्स लास्ट, लास्ट में आई वॉन्ट दीज 3 साइंस, तो इन द लास्ट यू कैन सी दीज 3 साइंस। लेट मी चेंज, मैं चेंज करती हूँ कमांड, हेयर स्टार दे दिया मैंने 3, गॉट इट। आई थिंक नाउ यू कैन यूज सेपरेटर, you can use and in the print command and you can display the message with string values and with numeric values also, हो जाएगा ना आराम से। चलिए नेक्स्ट इज
मोर अबाउट पाइथन आइडल। अब कुछ चीज़ें जो हम शायद कर चुके हैं बट विल लर्न हेयर अगेन। पाइथन शेल कंप्राइजेज ड्रॉप डाउन मेन्यूज। पाइथन शेल खोल के रखते हैं अपने पास। दिस इज पाइथन शेल, हेयर मेन्यूज आर देयर, आप देख सकते हैं सो मैनी मेन्यूज आर देयर, है ना। And a command prompt, already we have shown where we type the command, that is called command prompt. These जो 3 लेस देन और ग्रेटर देन की सिम्बल्स दिख रहे हैं, this is prompt. Okay, in Python editor और script mode, अब ये कौन सा, ये वाला मोड है स्क्रिप्ट मोड? नो, फॉर दैट दिस इज पाइथन स्क्रिप्ट एडिटर और स्क्रिप्ट मोड। इसको भी छोटा कर लेती हूँ मैं ताकि इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू शो यू। ओके, दिस इज आर इंटरेक्टिव मोड, दिस इज आर स्क्रिप्ट मोड। अब आप कहेंगे मैम काम तो यही हो रहा है तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? तो एक बार यहीं आते हैं वापस, कमांड्स कैन बी सेव्ड। अब इंटरेक्टिव मोड में अब तक हमने काम किया और जैसे ही हम इसको बंद कर दें कमांड्स विल बी गॉन। लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू सेव द कमांड्स देन वी हैव टू वर्क इन स्क्रिप्ट मोड। ओके, and for going to script mode already I have shown you, go to file menu and click on new. Okay, then you have to save the file and then run. Okay, दिखाते हैं आपको how. ये हमारी पाइथन विंडो, दिस इज शेल, दिस इज स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में अभी तक हमने प्रिंट ही सीखा है ना, चलिए प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हेलो स्टूडेंट्स मैसेज लिखा मैंने। ओके, फिर मैं एक और प्रिंट देती हूँ कमांड, इसमें हम सेपरेटर भी लगाते हैं। हेलो, कॉमा लगा दें, हेलो, हे, और क्या लगाएं? विद कॉमाज इट इज़ टू बी सेपरेटेड। देन एक और वैल्यू दे देती हूँ मैं यहाँ पर। यू कैन सी नीचे आपको लिखने का तरीका भी साथ साथ दिखाएगा। हाई, ओके। अब नाउ आई एम यूजिंग सेपरेटर। ओ कैपिटल एस हो गया, इट्स अ मिस्टेक, स्मॉल एस शुड बी देयर। सेपरेटर मैंने दिया डॉलर सिंबल, देन एंड देती हूँ। एंड इज अगेन सपोज एक्सक्लेमेशन सिंबल दिए मैंने। कमांड ठीक है, हमारी 2 कमांड दिए, और भी आपने जितनी मर्जी देनी है यू कैन गिव 1, 2, 3, 4 वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गिव। दे दी, कलेक्टिवली कमांड्स हैं। एक चीज़ आपने नोट करी, यहाँ पर जब हम कमांड लिख रहे हैं अपने इंटरेक्टिव मोड में, इमीडिएटली एंटर करते ही हमें उसका आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। बट इन स्क्रिप्ट मोड कितनी भी कमांड लिखो आउटपुट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट इज़ नॉट विजिबल। अब व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले इस फाइल को सेव करना है। गो टू फाइल, गो टू सेव। नाउ आई एम शोइंग यू हाउ यू विल रन इट। सेव किया, जहाँ भी आपने सेव करना है बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ आपकी पाइथन इंस्टॉल होगी इट विल गो टू दैट लोकेशन, बट सपोज मैं डेस्कटॉप पे सेव करना है। ओके, माई फर्स्ट फाइल है तो मैं फर्स्ट फाइल जो भी नाम आपने देना है वट एवर यू वॉन्ट, माई फर्स्ट फाइल नाम अपनी मर्जी का, बट लास्ट में कंपल्शन क्या है, .py। इट इज़ अ कंपल्शन, कोई भी नाम दे फाइल का, लास्ट में .py या फिर .pyw। ओके, सेव कर दिया, डन, ऊपर नाम आ गया आपकी फ़ाइल का। अब आप इस फाइल को रन करना है। रन मीन्स एग्जीक्यूट करना है, किस लिए, आउटपुट देखने के लिए। फॉर दैट गो टू रन मॉड्यूल। ओके, या फिर दूसरा मेथड, आपके कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ हैं, आप F5 प्रेस कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। मैं रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, आप क्या देख सकते हैं, हम कहाँ आ गए हैं, इंटरेक्टिव विंडो पे आ गए अपने आप, है ना। मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ आपको, लुक हेयर, दिस इज़ माय फर्स्ट फाइल का आउटपुट है। ये क्या आउटपुट है, पहले मैंने प्रिंट किया था हेलो स्टूडेंट्स, फिर मैंने प्रिंट किया, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में नहीं आए थे हम। ओके, क्लियर है। नाउ वी नो हाउ टू यूज़ द स्क्रिप्ट मोड, क्लियर है। वापस अपनी पीपीटी पे आते हैं। उसके बाद क्विट करने का तरीका। अब क्विट करने से पहले मैं 1-2 चीज़ और आपको बताना चाह रही हूँ। लुक हेयर,
इन पाइथन वी कैन ऑल्सो डू कैलकुलेशन. देखो बड़ा सिंपल तरीका है ना. वट एवर यू वॉन्ट टू डू. प्लस किया मैंने, माइनस किया. सेम थिंग वी कैन डू इन प्रिंट स्टेटमेंट. लुक हियर, आई हैव डन दिस विद प्रिंट. सेम थिंग. एक और कमांड करते हैं प्रिंट के अंदर. 2 + 5 + 6 प्लस वट एवर, कितनी लंबी कैलकुलेशन करें आप, एवरीथिंग विल बी डन. क्लियर है? दिस इज हाउ वी कैन डू कैलकुलेशंस इन द पाइथन. आई थिंक नाउ इट्स क्लियर. नाउ लास्ट टॉपिक फॉर दिस लेक्चर इज हाउ टू क्विट. दो तरीके हैं. बोथ विल वर्क इन द सेम मैनर. यू विल टाइप क्विट, लिखा, प्रेस एंटर, या फिर टाइप एग्जिट और प्रेस एंटर. एंटर करते ही आपसे पूछूंगा डू यू वांट टू एग्जिट. यस. ओके करते ही इट इज एग्जिटेड. ओके, नाउ दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू. बाय.